रेडियो की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ मीडियम विच दिल को छूता है। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका मेजबान और दोस्त राजू माजिद, और इस वक्त अभी आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM के डिजिटल हैंडल्स पे। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज वर्ल्ड रेडियो डे है। वर्ल्ड रेडियो डे पे आपको इस वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के इस दिन पे हम आए हैं दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहाँ पे वर्ल्ड रेडियो डे हम सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे। वादी कश्मीर से आरजे आए हैं, जम्मू से आए हैं, और हर स्टेट से लगभग यहाँ पे आरजे आए हैं जो यहाँ पे बात करेंगे। तो अंदर क्या प्रोसेस रहने वाला है, and contributions towards making the celebration of World Radio Day in India an event that radio operators and particularly community radio practitioners look forward to with great anticipation. Days of motherhood, can radios be the medium for promoting programs that could systematically enable the community members to improve their own nutritive intake, responding to the further improve the community radios within our country. I think there were some restrictions on an organization to have community radio stations. Now I think that has been relaxed. An organization can have now 6 community radio stations, so that will possibly help. There were possibly representations on the initial permissions and the number of years for which such permissions are applicable. I think now that's been increased from 5 years to 10 years. So that's again another reform that possibly you all would be liking. And I think you had some restrictions on the duration of the advertisements that you could do within an hour. Earlier, I think you had restrictions of 7 minutes within an hour, and that has been extended to 12 minutes in an hour. So these 3 changes possibly would help you to bring financial sustainability to the effort that you have been putting, and I'm very confident that in future also will remain live to your problems and would ensure that radios of all kinds, be it in public, private or in the community, are flourishing and remain a bedrock of our information and broadcasting initiatives that we take up within our country. So once again, my congratulations to all of you. बिकॉज रेडियो का सबसे अच्छी बात यह है कि आप साथ में उसको लेकर चल सकते हैं। विजुअल मीडियम्स आर ऑलवेज सॉर्ट ऑफ दे टेक योर बैंडविड्थ, बट रेडियो अपने साथ चलता रहता है। व्हाट डिड रेडियो मीन टू यू? So I grew up during the days of Yuvani. How many of you are familiar with Yuvani? Okay, great. So, and I remember my very first day in radio. Okay. We was asked, we were called for a training, and जो पहला सवाल हमसे किया गया, बिल्कुल पहला सवाल, जो पेक्स थी वहाँ पर, I won't name her, she was quite a famous person. She said, she asked a few of us, we were about 10-11, and she said, do you, and I remember this question because I often repeat it in my training programs, do you have the brains to be in radio? तो उस दिनों हम कॉलेज से निकले हुए थे, and anybody who asked us a question, I think there were 7 girls and 5 boys, and we had to say something very impressive. So the best thing to do at that point of time is to say, "Can you please repeat the question?" So she said, "Do you have the brains to be in radio?" And उस समय हमारी ये भी ट्रेनिंग थी, कॉलेज से निकले थे, कि जो भी कहो जोर के कहो और अंग्रेजी में कहो तो वो सही रहेगा। So I said, "Yes, ma'am, I have the brains to be in radio." And then she said something which I'll never forget. This is my first lesson in radio. She said, if you have the brains, you should be in television because radio is a medium of the heart. And I to radio knowingly or unknowingly? Unknowingly
बिल्कुल नहीं सुनता था, क्योंकि रेडियो हर घर में था। हमारे घर में तो शुरू में जब बचपन में तो गाल वाला रेडियो था, बड़ा वाला, और फिर धीरे धीरे वो छोटा होता गया। पर रेडियो एक जैसे कहते हैं ना, पीछे एक सुर और ताल बन जाए, तो ज़िंदगी के हर मोड़ में आपके साथ रेडियो था। गाने थे, रात को नाटक, जैसे यादें हैं कि अंधेरे में गार्डन में बैठ के हवा महल सुनते थे, फरमाइशें सुनते थे। कितने नाम हैं, जगहों के नाम हैं, हम सब लोगों के जहन में चुमरी तलैया क्यों अटका हुआ है? रेडियो की वजह से। बाजार सीताराम क्यों अटका? कहना चाहती हूँ, मेरी कहानी का एक अंश सुनिए। शब्द की बात भी होगी, हम लैंग्वेज की बात भी करेंगे, और संस्मरण से आपको हंसाऊंगी भी। आपको लगेगा कि रेडियो की दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है। हम जहाँ से शुरू हुए बच्चों के प्रोग्राम से, फिर मैं वो पहली आवाज़ थी जो वाणी की, राजस्थान के बहुत छोटे से शहर से मैं आती हूँ। अब बहुत बड़ा शहर है जयपुर, और जयपुर आकाशवाणी का अद्भुत योगदान बॉम्बे इंडस्ट्री को है, दूरदर्शन को है, रेडियो को है, कोई नकार नहीं सकता। हम सब इसके, मैं, मेरी बहन हीला, रुम तो छोड़िए, आप ओम चुपड़ी, सुधा चुपड़ी, यू नेम इरफान। इरफान खुद मेरे साथ ड्रामा करते थे जयपुर। नहीं, सी वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पॉडकास्टर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीपल लुक टू आकाशवाणी, उन्हें प्रोनाउंसिएशन चाहिए किसी की तो वो आकाशवाणी सुनेंगे, ऑथेंटिसिटी चाहिए वर्ड्स की, दे लुक टू आकाशवाणी। आपको न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चाहिए, ऑब्वियसली पीपल गो टू ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। तो वी हैव टू वी कैन नॉट shadow the expectations of the people. वो उनकी expectation है हमसे that we maintain that language, and you will not believe अगर दो चार वर्ड इधर उधर होते भी हैं, then we start getting letters from people. उनके लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं। yes, they just start complaining, ये आपके आरजे क्या बोल रहे हैं, वो बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑनलाइन, दिस इज नॉट द वे, आप अगेंस्ट जा रहे हैं, ये आप our audiences, our listeners are the ones who expect us. दिल्ली में किसी ने ये अलम उठा के रखी थी कि रेडियो आज जिंदा है। उन्होंने 20 साल, one of the longest running radio dramas, जून डब जिसे कहा जाता है, दरीचा मान लीजिए, एक घर का दरीचा जो सेकंड फ्लोर पे होगा उसको जून डब कहेंगे, जहां से आप चांद देखते हैं। जून कश्मीरी में चांद को बोलते हैं। ये प्रोग्राम का नाम था, और वहां से रेडियो ड्रामा जो बना 20 साल तक अनइंटरप्टेड चला। सोमनाथ साधु साहब ने उसको लिखा, पुष्कर भान साहब ने उसको लिखा, फारूक नाज़की साहब ने भी उसको लिखा, और खुद किरदार भी उसमें निभाया। और 20 साल आप सबको मालूम है वो रेडियो शो क्या करता रहा रेडियो कश्मीर पे। वो रेडियो कश्मीर पे एंटरटेन करता रहा लोगों को, लेकिन एक जगह अगर पॉट होल था ना, जून डब में अगर उसका जिक्र आ जाए ना, दूसरे दिन वो ठीक हो जाता था। सो प्लीज रिमेंबर एंड क्लैप फॉर अ ग्रेट रेडियो सोल्जर एंड अ रेडियो स्टार फ्रॉम कश्मीर, मिस्टर फारूक नाज़की साहब। ये पंजाब से हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कश्मीर में रेडियो करता हूँ। तो रेडियो इज़ अ मीडियम विच ब्रेक्स बैरियर बाउंड्रीज। तो हमारे लिसनर्स वहाँ भी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से भी हमें सुनते हैं, तो उन सबको आज बहुत बहुत मुबारक। आज 100 साल कंप्लीट हो गए और आज वर्ल्ड रेडियो डे भी है। और रेडियो की अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ मीडियम विच दिल को छूता है। और लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि आजकल डिजिटाइजेशन हो गई है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है, क्या रेडियो रेलिवेंट है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 साल से रेलिवेंट है तो अगले 100 साल भी रेलिवेंट ही रहने वाला है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे, बहुत बहुत मुबारक हो ये दिन आपको। स्पेशली जो हम कंटेंट बनाते हैं उस पर आप देखिए, कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो आजकल बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर। आपके हाथ में फ़ोन है तो कुछ ना कुछ आपको दिख ही जाता है, लेकिन वही कंटेंट आजकल अच्छा है या वही कंटेंट आपको कंज्यूम करना चाहिए जिसमें ऑनेस्टी हो, जिसमें कोई फ़ायदा हो। और रेडियो की अगर मैं बात करूँ, आप देखें कि रेडियो का कंटेंट जो है इट्स अ डिफरेंट कंटेंट फ्रॉम ऑल दी अदर कंटेंट जो आप देखते हैं, क्योंकि इसमें लोगों की बात हो रही होती है, लिसनर्स की बात हो रही होती है, एंटरटेनमेंट की बात हो रही होती है। सो इंफोटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। सो दिस सेज कि कहीं ना कहीं आजकल
टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो आया है उसकी वजह से भी रेडियो जो है वो मासेस तक पहुंचा है और भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। थैंक यू सो मच। क्या कहना हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे टू एवरीवन। और आज ही 100 years ऑफ रेडियो कंप्लीट हो चुके हैं। ओवरऑल अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करें देन इफ विल टॉक अबाउट द कम्युनिटी रेडियो, आज उसके भी 20 बरस कंप्लीट हो चुके हैं। सो बिग थैंक यू टू दोज जो इस जर्नी में जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं, अपने पीक ईयर्स दिए हैं, उन सब को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं आज के दिन। एंड यही वो एक राह चलता आया है और वो जर्नी चलती आई है। आज हम उसी जर्नी के इस पड़ाव पर हैं, कल कोई और होगा। तो इसलिए वो तमाम लोग जो ये लेगेसी लेकर आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। होस्ट के साथ साथ आप स्टेज भी करते हैं जी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। थैंक यू। What's your take on that? See, I think that's the energy का एक सबसे बड़ा बूस्टर व्हेन यू आर इन द रियल ऑडियंस। एक हो गया रील वाली ऑडियंस, वो नहीं, रियल ऑडियंस में आप जब होते हैं तो वो प्यार दिखता है, वो एक जुनून दिखता है। अगर आप सचमुच पैशनेट हैं इस काम को लेकर के तो भाई रियल ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने में, उनको हंसाने में, उनके साथ वो एनर्जी शेयर करने में बहुत ही मज़ा आता है। और आई थिंक होस्टिंग के लिए एक स्टेप अहेड ऑफ जो आप स्टूडियो में करते हैं, और उस चीज़ को सेलिब्रेट करता हूँ एंड और लोगों को बताता हूँ कि कैसे उस चीज़ को बेहतरी से किया जाए जब रियल ऑडियंस के सामने आपको परफॉर्म करना होता है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वी शुड सेलिब्रेट। जी, इनके रेडियो लिसनर अपने अंदर कहा ना कि कॉल्स करते हैं जी, रेगुलर लिसनर था यार। हाँ, तो हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हम भी आरजे बनना चाहते हैं या हम भी इस तरीके का काम करना चाहते हैं जी, या बट आई थिंक हाँ, सालों से जब से मैंने रेडियो स्टार्ट किया है तो मैं भी बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो करता हूँ, तो सुनते सुनते मैंने सीखा। उन लोगों के लिए आपका क्या जवाब है? देखिए वो जो है ना, देख सुनते सुनते तो आपको प्यार हो भी सकता है, वो प्यार देखिए सही नहीं हो सकता है अगर वो सच्चे पैशन से नहीं आ रहा हो। इफ यू आर पैशनेट अबाउट दैट, अगर वो पैशन है तो बॉस आप लिसनर से रेडियो जॉकी कब बने वो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो सच्चा पैशन है तो आप रास्ता निकालेंगे। जब आप किसी का नंबर डायल करके एफर्ट डाल रहे हैं किसी आर्टिस्ट से बात करने के लिए, उनके शो के बारे में कमेंट शेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक आप उस स्टूडियो का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। जॉब नहीं मिली, इंटर्नशिप तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं, और अगर आप इंटर्नशिप निकाल रहे हैं तो आपको आधा रास्ता मिल गया। थैंक यू। किसी ने कहा है कि खुदा जब खुद को देता है तो नजाकत आ ही जाएगी। या वो आई थिंक वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस माहौल में अगर आप रहते हैं, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं और उस वाइब के साथ आप हैं तो देन यस, गुड टू गो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।